نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ آقا فرمائیں یہ میرا مہینہ ہے، ہم آقا کے ہیں اور یہ آقا کا مہینہ ہے، تو پھر تو سبحان اللہ اس مہینے سے زیادہ محبت ہو جائے نا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تو آقا سے تو جس چیز کو نسبت ہو جائے عاشق رسول کا سینہ اور جھوم اٹھتا ہے۔ There are 5 letters, Arabic letters in month of Shaban: Sheen, Ain, Ba, Alif and Noon. His Saintly Highness Sayyidina Ghaus Azam Rahmatullahi Ta'ala has explained these 5 alphabets of Shaban as Sheen stands for Sharaf, for nobility. Ain for Uluv, ascension, Bulandi. Ba for Bir, yani bhalai, kindness and benevolence. Alif for Ulfat, affection, Muhabbat. Bir and Ba for Bir, for kindness, subhanallah, and Alif for affection, and Noon for Noor, subhanallah, night, light. اب ذرا اردو ناظرین کے لیے سمجھا دوں کہ غوث پاک نے شعبان کے الفاظ کو کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ شین سے شرف یعنی بزرگی، عین سے علوف یعنی بلندی، با سے بر یعنی بھلائی، الف سے الفت یعنی محبت، اور نون سے نور۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں so these are the virtues which will Allah Azza wa Jal bestows his servants in the blessed month۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنے نیک بندوں، اپنے مبارک بندوں، اپنے پسندیدہ بندوں پر یہ ساری بلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ساری بلیسنگز لے لینی ہے، یہ ساری بھلائیاں اللہ کی رحمت سے لے لینی ہے۔ اسی مہینے میں وہ رات ہے جس کو شب براءت کہتے ہیں، the night of برات۔ تو اس سے پہلے ہمارے اعمال نامے ایسے درست ہو جائیں، کیونکہ بک آف ڈیڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے، تو ہمیں خوب عبادت کرنی ہے، روزے رکھ لیں، درود پڑھ لیں، تلاوت کر لیں۔ پچھلا پورا سال تو گناہوں میں گزارا ہے، آخری ڈیز تو اچھے کر لیں، تو انشاءاللہ یہ فراغت کا جو وقت ہے، جو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اس میں خوب عبادت کر لیں۔ کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ 10 بار صبح اور 10 بار شام درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، لیکن آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں۔ تو برائے کرم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اور شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جو بات کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں، کہ ہر معاملے میں سرکار دو عالم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اسی نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ What was the reason؟ نبی پاک کیوں دنیا میں تشریف لائے، بعثت کیوں ہوئی؟ اس کا جو مین ریزن فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسن اخلاق، اچھی زندگی گزارنا یہ اسلام کو کس قدر مطلوب ہے۔ اور نبی پاک کی سبحان اللہ جو سیرت ہے، اس کے اندر جو اخلاق کریمہ کا شاندار نرمی کا، معافی کا، درگزر کا جو عنصر ہے، تو وہ شاعر کہتے ہیں نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں
घर करने वाला, मेरे आका वो हैं जो खताकार से दरगुजर फरमाते, मेरे आका वो हैं जो यतीमों के मलजा हैं, अपने पराये के गम को महसूस करने वाले हैं। आज सीरत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए मुझे और आपको ये सीखना है कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, कैसे बेहतरीन मुसलमान बनना है। मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। हजरत ज़ैद बिन साना रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक यहूदी आलिम थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उनके साथ क्या मामला हुआ, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई कारोबार किया था और खजूरें देने की अब जो मुद्दत थी उसमें 2 या 3 दिन बाकी थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी 2-3 दिन बाद वो खजूरें लौटानी थी। तो ज़ैद बिन साना ने भरे बाजार में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोक कर बुलंद आवाज से तुर्श अंदाज में, जिसको कहते हैं ना कि गुस्से वाले अंदाज में, नबी पाक से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हुकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। अब जरा गौर करें, सहाबा साथ हैं, भरे बाजार में लोगों के सामने ये मिस एटीट्यूड किया जा रहा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अब वहां हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। गज़बनाक नजरों से ज़ैद बिन साना को देखा और कहते हैं, ए अल्लाह और रसूल के दुश्मन, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब का लिहाज ना होता, मेरी तलवार होती और तेरा सर उड़ा देता। क्या अल्लाह के नबी से ऐसे बात करते हैं? अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिल्म और बुर्दबारी देखें। अब जरा अपने आप को पहले रखकर सोचें कि मैं कहीं बाजार में जा रहा हूं, मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी हैं या मेरे दोस्त हैं, और जनाब मुझे कोई रोक के बदतमीजी करे, और अब बताएं लोगों का उस वक्त रिप्लाई क्या होता है। मगर नबी पाक हजरत उमर को देखकर फरमाते हैं कि ए उमर, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था मुझे अदाए हक की तरगीब देकर, और इसको कहते कि नरमी से तकाजा करो, हम दोनों के बारे में, हम दोनों को ये बात करते, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को कहा, ए उमर जाओ, ज़ैद बिन साना को उसकी खजूरें दे दो, बल्कि कुछ ज्यादा देना। अब गौर कीजिएगा, जितनी खजूरें निकलती हैं उससे कुछ ज्यादा देना। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरें जितनी हैं उतनी ही देनी है, ज्यादा क्यों देनी, वैसी बदतमीज है। तो नबी पाक ने फरमाया, ए उमर, जो तुमने तीखी नजरों से उसे देखा था, उसे जिस अंदाज से तुमने बात की थी, उसका दिल टूट गया होगा। ऐसा करो, थोड़ी खजूरें इसलिए ज्यादा दो कि उसके दिल में मजीद नरमी आ जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान सुनकर हजरत उमर खुद जाते हैं, जाकर खजूरें देते हैं। ज़ैद बिन साना कहता है, ए उमर, जितनी निकलती हैं उससे ज्यादा क्यों दे रहे हो? कहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, मैंने तुम्हें बड़ी अजीब नजरों से, गुस्से वाली नजरों से देखा था, मैं इसलिए तुम्हें खजूरें ज्यादा दे रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, अब जब ये देखा ना, हजरत ज़ैद बिन साना ने ये देखा तो कहते हैं, ए उमर, बात ये है कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने कहा, कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं, मैं ज़ैद बिन साना हूं। हजरत उमर पहचान गए, क्योंकि वो यहूदियों का मशहूर आलिम थे उस जमाने में। कहा, तुम वही हो जो यहूदियों के आलिम हो? कहा, जी। तो कहा, फिर तुम्हें पता नहीं अल्लाह के नबी से बात कैसे करते हैं? कहा, मुझे बिल्कुल इल्म है, मैंने आसमानी किताब में आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी हुई हैं, और मैंने इनकी जात में नबूवत की तमाम निशानियां पहचान ली थी। 2 निशानियों का मुझे इम्तिहान लेना था, 2 निशानियों के बारे में मुझे चेक करना था कि क्या ये वही अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिसका जिक्र हमारी आसमानी किताबों में है। ऐ उमर, वो 2 निशानियां ये लिखी हैं कि इनकी कुव्वत बर्दाश्त इनके गुस्से पर गालिब रहेगी, जिस कदर ज्यादा उनके साथ जहालत का बर्ताव किया जाएगा उसी कदर उनका सब्र तहम्मुल बढ़ता चला जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, प्यारे आका का कुव्वत बर्दाश्त भी है, और जितना जहालत की गई उतना सब्र भी बढ़ता गया। सुभान अल्लाह। अब हजरत ज़ैद बिन साना क्या कहते हैं, ऐ उमर, गवाह हो जाओ, मैंने पहचान लिया है, मैंने दोनों चीजें चेक कर ली हैं, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और ऐ उमर, ये भी सुन लो कि अल्लाह ने मुझे
बड़ा माल दिया है, मैं आधा माल राह इस्लाम में वक्फ करता हूं, राह इस्लाम में देता हूं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीखने को क्या मिला? अच्छा अखलाक हो, माफी हो, दरगुजर हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और बुरा अखलाक हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो आज के सीरत के इस इज्तिमा में जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि इस्लाम को मुसलमान के अच्छे अखलाक मतलूब हैं, और जिस नबी अलैहिस्सलाम का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है उनका अखलाक किस कदर अरफा व आला, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा सुनिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे। आपने फतह मक्का का वाकया सुना होगा, अब जरा इसकी थोड़ी सी मजीद तफसील सुनते हैं। पहले याद कीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने क्यों गए थे। द बर्थ प्लेस ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम वाज मक्का। ही बोर्न इन मक्का, ही स्पेंड हिज अप्रोक्सीमेटली मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ इन मक्का। नबी पाक अलैहिस्सलाम 63 इयर्स इस दुनिया में तशरीफ लाए। आउट ऑफ दो 63 इयर्स मेरे आका ने 53 साल मक्के में गुजारे। विलादत वहां होती है, नबी पाक की शादी मुबारक वहां होती है, मक्का में सफा मरवा भी है, काबा भी है, हज भी वही होता है। मगर उन कुफारे मक्का ने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत देनी शुरू की, अल्लाह की तरफ बुलाया, तो जो जुल्म की आंधियां चलाई, जिस तरह तकलीफ पहुंचाई, सहाबा को मारा गया, जो नमाज पढ़ता उसे मारते, जो अजान देता उसे मारते, कई सहाबा को शहीद कर दिया गया। खुद नबी पाक के चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब गज़वा उहद होता है मदीना पाक जाकर, किस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब मक्के में थे, जमीन तंग कर दी गई। नबी पाक बड़ी तकलीफ के आलम में, बड़े सौरो सैडनेस के साथ मेरे आका मक्के से मदीने हिजरत करते हैं। मगर उनको फारे मक्का को फिर भी चैन नहीं आया कि ये तो मदीने पहुंच गए, अब वहां रिलैक्स में क्यों हैं। तो अभी पहुंचे हैं और 2 हिजरी में जनाब गज़वा बदर होता है, 3 हिजरी में गज़वा उहद होता है। यानी उनको चैन ही नहीं आ रहा था कि उनको जाके किसी तरह इस्लाम को मिटा दें। लेकिन अब जब 8 हिजरी में फतेह मक्का होता है, मुश्किल के दिन खत्म हुए, अब मक्के में एक फातिहाना अंदाज में नबी पाक दाखिल हो रहे हैं। नबी पाक जब मक्का पाक में दाखिल हो रहे थे तो कोई शाहाना अंदाज नहीं था। रिवायतों में आता है मेरे आका ऊंटनी पर बैठे थे और इस कदर झुके हुए सूरह फतह की तिलावत कर रहे थे कि आपका इमामा शरीफ ऊंट के कजावे से लग रहा है। यानी ये ऐलान था कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह की अता से मुझे ये कामयाबी मिली है, और कामयाबी मिलने पर भी गुरूर नहीं है, वहां भी आजिज़ी का अंदाज है। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इस वाक़े से पहला सबक तो ये लें कि अगर जिंदगी में अल्लाह कोई मकाम दे दे, कोई मर्तबा दे दे, कोई उरूज दे दे, कोई दौलत दे दे, हमें आजिज़ी रखनी है। कहते ना अपनी औकात याद रखनी है कि मैं कौन था और रब ने मुझे कहां पहुंचाया। अच्छा, अब फतेह मक्का हो गया, सारे कुफार सामने खड़े हैं, सहाबा के कातिल भी खड़े हैं, गज़वा उहद में हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले भी खड़े हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादियों को तकलीफ देने वाले भी खड़े हैं। अब सबकी हालत खराब है कि आज तो हमारी बोटियां नुचवा दी जाएंगी, आज तो हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, हमने जुल्म सितम में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो आज इन्होंने क्या हमारा हाल करना है। मगर सुनो मेरे आका कौन हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो तो रहमत सारे जहानों के लिए हैं। ऐसे मौके पर कि जब वो सारे दुश्मनाने इस्लाम मौजूद थे, नबी पाक का वो अजीम ऐलान, प्यारे आका फरमाते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौमा फदहबू अंतुमुत तुलका। आका ने फरमाया आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। अच्छा, वो सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज सर उड़ा दिए जाएंगे, आज कैद कर लिया जाएगा, मगर ये कैसा ऐलान था, अल्लाह अकबर। अच्छा, फतेह मक्का में हमने यहां तक तो ये वाकया सुना होगा कि नबी पाक ने सबको माफ कर दिया, बट यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस फॉरगिवनेस। इस माफी के बाद हुआ क्या? अल्लाह अकबर, मुसलमान मक्के से 10,000 आए थे, 10,000 सहाबा थे 8 हिजरी में, मगर जब ये ऐलान हुआ तो उन सरदारों की आंखों से आंसू निकल आए कि हम इतने बड़े जुल्म करने वाले, हम इतनी ज्यादा
ज्यादती करने वाले, हमारी वजह से इनको अपना आबाई वतन छोड़ना पड़ा, ये मक्के से मदीने चले गए। आज मौका मिला है तो बदला नहीं ले रहे, आज मौका मिला है तो माफ कर रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और जोरों शोर से सबने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यानी मेरे आका अगर उन सबके सर कलम फरमा देते तो ये दुश्मनी दर दुश्मनी चलती रहती, मगर एक अजीम ऐलान ने काया पलट कर दी। और आपको यह भी पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपसे हिसाब किताब मैं चाहूंगा, जरा एक थोड़ी सी हिस्ट्री को मैं रिकॉल करवा देता हूं, ये इंशाल्लाह काम आएगी आपको। आपको याद होना चाहिए कि मेरे आका ने ऐलान नबूवत कब फरमाया था? 40 साल की उम्र में। हिजरत कब की? 53 साल की उम्र में। यानी 13 साल तक इस्लाम की दावत दी। कितने लोग ईमान लाए थे? उलमा फरमाते 80 या 100 के करीब लोग ईमान लाए थे जो मक्के से हिजरत करके मदीने गए। ठीक है, फिर 2 हिजरी में गज़वा बदर हुआ। कितने मुसलमान सहाबा थे? 313। अदद याद है ना आपको? यानी 13 और 2 साल मिला लें तो अभी कितने मुसलमान हुए? 313। चले आप खवातीन को मिला लें तो ऑल टुगेदर 600-700 पूरी दुनिया में मुसलमान थे। फिर इसके बाद 3 हिजरी में गज़वा ओहद होता है, 700 मुसलमान थे उस लश्कर में। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया होता है, 1400 मुसलमान हैं। आप ग्रेजुअली देख रहे हैं कितनी स्ट्रगल हो रही है। अब 6 हिजरी का मतलब तो बताएं, 6 और प्लस 13 कितने हो गए? 19 साल अल्लाह के नबी ने कोशिश की है। और सुलह हुदैबिया में 1400 साहबा हैं और थोड़े से मदीने पाक में भी होंगे। हम ऑल टुगेदर मान लेते 3000 मुसलमान हुए थे। 19 साल की स्ट्रगल। 8 हिजरी में मेरे आका फतेह मक्का फरमाते हैं, 10,000 मुसलमान हैं। साहबा 10,000 का लश्कर है ना, मगर आप जानते 10 हिजरी में जब हज्जतुल विदा होता है कितने साहबा हैं? 1,24,000 साहबा मैदान अरफात में मौजूद हैं। ये 21 साल की कोशिश में 10,000 तक पहुंचते हैं। और वो माफी के ऐलान के बाद, वो अजीम हिकमत अमली के बाद ये 10,000 से तादाद कहां पहुंचती है? 1,24,000। तो पता क्या चल रहा है कि फतह मक्का वाज द टर्निंग पॉइंट। ये एक ऐसा ऐलान था, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उस दिन से लेकर आज तक इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। आज अगर पूरी दुनिया का सर्वे करें तब मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ जो है वो हमारा मजहब इस्लाम है। तो सुभान अल्लाह, ये फतह मक्का की माफी याद दिला रही है कि खून के प्यासों को माफ किया, रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को माफ किया, जमीन तंग करने वालों को माफ किया। मगर आज मैं और आप देखें, क्या हम माफ करते हैं या हम बदले की आग में जल रहे हैं? किसी को कहो भाई माफ कर दो, नहीं नहीं मैं तो इंतजार कर रहा हूं, बस मौका मिले बदला लेना है। हालांकि हमारे वतन पाकिस्तान में ऐसे भी ट्राइब्स, ऐसे भी कबीले हैं कि जहां लोग वसीयत करके बच्चों को जाते हैं कि तुमने फला कबीले से मुकाबला करना है, फला रिश्तेदार से बदला लेना है। अल्लाह अकबर, उस नबी के उम्मती हैं। नात के अशार हम सबको याद होंगे कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। क्या कभी हमने गालियां सुनकर दुआएं दी? जरा गौर कीजिए ना। हमें तो कोई एक गाली दे, हम बताते हैं हमें कितनी गालियां याद हैं। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, जान लेने वालों को नबी पाक ने बख्श दिया। हम छोटी सी गलती मुलाजिम कर ले उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। किसी गरीब आदमी से हो तो उसको तो बसल के रख देते हैं। ना करे ऐसा। जिस नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पड़ा है, जिनकी सीरत के इस इज्तिमा में आए हैं, उनकी अखलाक करीमा तो देखें। वो तो गरीबों पर कैसे मेहरबान थे कि कभी कभी गुलाम आते थे, कहते हुजूर हमारे घर पे आपकी दावत है और खजूरें हैं और पुरानी चर्बी है, मेन्यू भी बता रहे हैं। तो मेरे आका जो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के हबीब हैं, वो उस गरीब के घर भी दावत पर चले जाते, उस गुलाम के घर भी दावत पर जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में यह भी पहलू मिलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर अपने खादिम को भी बिठा लिया करते थे। अब जरा मुझे बताइए ना, पहले सवारियां क्या थी? गाड़ियां तो नहीं थी ना, ऊंट थे या घोड़े थे। घोड़े पर नबी पाक सवारी फरमा रहे और पीछे किसको बिठाया? अपने खादिम को। ये कैसी आजी है? आज क्या ये कोई इमेजिन करता है कि अपने मुलाजिम को अपने बराबर वाली सीट पे बिठाए, खुद ड्राइव करे और खादिम को कहे बैठ जाओ? लोग कसरे शान समझते हैं, किसी गरीब के साथ खाना अपनी शान को कम समझते हैं। हालांकि हम वो हैं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो किसी ने कहा हुजूर आप अल्लाह के नबी होकर जमीन पर बैठकर खा रहे हैं? आपने फरमाया मैं बंदा हूं और बंदों की तरह जीता हूं, बंदों की तरह जिंदगी गुजारता हूं। एक बार नबी पाक अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए
تو صحابہ کھڑے ہو گئے. واقعی ان کا کھڑا ہونا بنتا تھا، آقا ان کے آقا ہیں، وہ غلام ہیں. مگر پیارے آقا نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا جب میں باہر آیا کروں کھڑے نہ ہوا کرو. اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام کتنا بڑا ہے. اس پہ تو پوری الگ بیان ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کا مقام کتنا بڑا. بس ایک حدیث سے ہی سمجھ جائیے، وہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا. تو یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے نا، یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. جبھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق کو محبت لکھتے ہیں نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو جن کا صدقہ یہ کائنات ہے، وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے لیے کھڑا نہ ہونا. اور اگر آج میں کہیں جاؤں اور میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، مجھے پروٹوکول نہ ملے، مجھے عزت کی جگہ پر نہ بٹھائیں، تو برا لگتا ہے. بندہ دعوت چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے، تقریب چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ جناب مجھے عزت نہیں ملی. اللہ اکبر، یقیناً لوگوں کو، معززین کو عزت دینی چاہیے، مگر اپنے دل میں یہ تمنا کرنا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ کمتر ہیں، تو بتائیں نا پھر تکبر کسے کہتے ہیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف پراؤڈ؟ یاد کیجئے گا، تکبر وہ برائی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہاں تکبر کا عالم یہ ہے کہ جناب پورا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اس طرح کا بیان ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار میں تو تکبر نہیں کرتا. چلے میں آپ کو شیطان کا وہ واقعہ مختصر سنا دیتا ہوں. شیطان نے سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں کیا تھا، کیا کیا تھا؟ تکبر ہی تو کیا تھا. حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا. اور آرگیومنٹ کیا پیش کیا تھا؟ وہ قرآن میں موجود ہے. انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں سپیریئر دین ہم. خلقتنی من نار یوں وخلقتہ من تین، اے اللہ تو نے مجھے نار سے یعنی آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے. بس پیارے اسلامی بھائیوں یہی سمجھنا ہے. جو یہ جملہ ہے نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اسی کو تکبر کہتے ہیں. اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا. تو آج آئے ہیں نا، اپنا دل صاف کر کے جائیں.